Good morning, students. The topic that we are going to see today is the techniques of scientific management. Yesterday we have studied about two main techniques given by Taylor, that is functional foremanship, and second was standardization and simplification of work. Today we are going to see the third technique of scientific management, that is work study. Now first of all, what do you mean by work study? It refers to scientific study of any work. किसी भी काम को करने के पीछे आप डिटेल स्टडी करना, ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, कितने एफिशिएंसी में कर रहा है, जो कर रहा है वो बराबर है या नहीं. सो यू आर मेकिंग अ डिटेल एंड अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क. So as far as the work study is concerned, there are total 4 studies which are being made by Taylor, that is method study, motion study, time study and fatigue study. So let's start with what this work study indicates. Now very first method is the method study. Now what do you mean by method study? अब कोई भी काम अगर आपको करना है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपको अलग अलग मेथड्स इन्वॉल्व एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं सो दैट यू आर एबल टू डू और कंप्लीट योर पर्टिकुलर जॉब. So method study is nothing but to find out the best possible way of doing a particular job. एक particular job को करने के लिए जो best possible way है उसे ढूंढना, that is your method study. Now why you are doing this? So that you can maximize your efficiency, you can minimize your cost of production, you can increase your quality and the customer satisfaction. So method study is nothing but to find out the best possible way of doing a particular job so that it can lead to maximization of efficiency and minimization of process cost of production. Now in order to deal with the method study, Taylor has devised one concept, that is concept of assembly line. Now what do you mean by assembly line? Assembly line is nothing but it is a process which is followed in a manufacturing unit where a work is assigned, each worker is assigned a specific task which he or she keeps on repeating, and then the process will move to the next worker who will again do the specific task. In simple word, assembly line का मतलब क्या है? सपोज 10 वर्कर है, ठीक है, अब हर एक वर्कर को उसका काम दिया हुआ है और वो बंदा सिर्फ वही काम करेगा. जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा, ही विल फॉरवर्ड हिज वर्क टू दी सेकेंड वर्कर. फिर सेकेंड वर्कर उसमें अपना काम करेगा, देन इट विल मूव टू थर्ड. फिर थर्ड वर्कर उसमें अपना काम करेगा, देन इट विल मूव टू फोर्थ वर्कर. ठीक है, सो दैट इज योर असेंबली लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, सो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे यूजुअली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन इन ऑर्डर टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द कार. जैसे फॉर एग्जांपल वर्क स्टेशन ए है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले बोनेट लगने का काम है, ठीक है, तो वर्क स्टेशन ए में बोनेट लगेगा, ठीक है. फिर सेकेंड वर्क स्टेशन में क्या होगा, जैसे ही बोनेट लग जाएगा वो कार, इट विल बी पास्ड ऑन टू दी सेकेंड वर्क स्टेशन, जहां पे अगर उसको कोई फिटिंग्स करनी है, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फिट करना है तो वो काम होगा. फिर थर्ड वर्क स्टेशन में जाके सपोज कोई पेंटिंग या कलरिंग का काम है, फिनिशिंग का काम है, दैट विल गो टू दी थर्ड वर्क स्टेशन एंड फाइनली टू दी फोर्थ वर्क स्टेशन, जहां पे वो फाइनली वो प्रोडक्ट या जो आपका कार है वो बनके रेडी हो जाएगा. So assembly line, Ford Motors was the very first company who has followed this assembly line concept and was one of the successful company as far as the automobile industries are concerned. No doubt today almost all the automobile industries, they are using this assembly line concept. This assembly line concept can be used in other techniques, जैसे batch production आपने सुना होगा. तो batch production में क्या है, जैसे अगर कोई एग्जांपल मेडिसिन, दे आर प्रोड्यूस इन बैचेस, अलग अलग बैचेस में वो प्रोड्यूस होता है, 200 mg, 500 mg, 1000 mg. तो बैच प्रोडक्शन में भी असेंबली लाइन होता है जहां पे सबसे पहले कोटिंग का काम होगा, सबसे पहले फिलिंग, जैसे कैप्सूल अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले फिलिंग ऑफ कैप्सूल होगा, फिर कोटिंग ऑफ कैप्सूल होगा, फिर पैकिंग ऑफ कैप्सूल्स होगा एंड देन फाइनली इट विल गो टू दी फाइनल पैकेजिंग इनटू दी स्ट्रिप्स. तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज असेंबली लाइन. हर एक वर्क स्टेशन को एक एक वर्कर अलॉट किया जाएगा, वो वर्क स्टेशन में हर एक बंदा जो भी उसका काम है वो काम करेगा एंड देन इट विल बी प्रोसीडेड टू दी सेकेंड वर्क स्टेशन एंड सो ऑन टिल दी फाइनल प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस. सो दिस assembly line is the very important contribution or the concept being developed by Taylor, and today it has been used by most of the manufacturing industries. And it may also make this assembly line, they may make the use of humans or the robotic workers for performing the same type of work repeatedly. ठीक है, एक ही काम वो repeatedly करता जाएगा. So this is the method study. अब सेकेंड तरह की स्टडी जो होती है दैट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मूवमेंट या मोशंस.
एक काम करने के लिए एक बंदा कितने बार मूव करता है या कितने बार मोशन करता है, दैट इज द स्टडी ऑफ मोशन स्टडी. सो मेकिंग थरो एनालिसिस ऑफ मोशन और मूवमेंट परफॉर्म बाय दी वर्कर. जैसे कि कितने बार कोई आइटम को लिफ्ट कर रहा है, कितने बार बैठ रहा है, कितनी बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसको आप डिटेल में स्टडी करते हो. सो मोशन स्टडी इट डिजाइन्स द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द रिपीटेड जॉब. अब दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट, दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. तो मोशन स्टडी का काम क्या है कि कितने मूवमेंट, जो भी एक वर्कर एक काम करने के लिए जितने भी मूवमेंट करता है उसमें से ये देखना कि उसमें से प्रोडक्टिव कितना है एंड अनप्रोडक्टिव कितना है, ताकि जब आप डिटेल एनालिसिस करो आपको पता चल सकता है कि ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है तो आप उसको एलिमिनेट करो ताकि आपका उतना टाइम सेव हो जाए एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर प्रोडक्टिव मूवमेंट्स. सो दैट इज दी मोशन स्टडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने आपको भेजा है, उस वीडियो में अगर आपने देखा जैसे कोई फास्ट फूड चेन है, ठीक है, आई एम नॉट वेरी मच गुड एट ड्रॉइंग, सो जस्ट आई एम गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल मोशन स्टडी का. जैसे ये एक स्क्वीजर है, ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बर्गर बनाना है और आपको मेयोनीज स्प्रेड करनी है उसके ऊपर या सॉस स्प्रेड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है, तो सपोज आपको ऐसे 3 लाइन्स के या 4 लाइन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 लाइन यू विल बी फिनिशिंग. जैसे आपका कोई बर्गर है, ठीक है, तो बर्गर के ऊपर पहले 1 लाइन करोगे, फिर 2nd लाइन करोगे, फिर 3rd लाइन करोगे, तो नो डाउट कुछ सेकंड का ही काम है, बट जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको 6 सेकेंड्स लगते हैं 3 लाइन ड्रॉ करने में. सो मोशन स्टडी क्या सजेस्ट करता है, स्क्वीजर में आप 3 ओपनिंग्स दे दो तो एक ही साथ एक ही गो में एक ही मूवमेंट में आपके तीनों लाइंस रेडी हो जाएंगे. सो दैट इज दी मोशन स्टडी. सो मोशन स्टडी का मेन मकसद क्या है कि जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं आप उसको एलिमिनेट करो सो दैट योर टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम एंड दैट टू एट अ ग्रेटर एफिशिएंसी. सो दिस इज दी मोशन स्टडी बीइंग डेवलप्ड बाय टेलर. एंड ये मोशन स्टडी ज्यादातर कौन से बिजनेसेस में यूज होते हैं, तो अगेन ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में, बैंक्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, टिकट काउंटर्स में. टिकट काउंटर्स में जैसे क्या है, वो टिकट देने का काम है तो वो बार बार उठ के जाके टिकट नहीं देगा, सारे टिकट्स को अपने पास ही रखो. सिमिलरली वर्कर्स जैसे उसको हर बार कोई काम करने के लिए अलग अलग टूल की जरूरत पड़ती है तो बार बार उठ के जाना, फिर ये टूल लेकर आओ, सेकंड टूल लेकर आओ, उससे बेटर क्या है उसको इस तरह से अरेंजमेंट करो कि उसका टूल बॉक्स उसके बाजू में ही रहे, सो दैट जैसे उसको जो भी टूल की जरूरत पड़ती है ही और शी कैन यूज दैट टूल एंड कंप्लीट हिज वर्क. सो दैट इज मोशन स्टडी. The third type of study being conducted by Taylor is the time study. Time study मतलब क्या है, to determine the standard time taken to do a particular job. एक जॉब को करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है आप वो डिटरमाइन करते हो. सो इसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम. सो आप मेजरिंग डिवाइस जैसे कि स्टॉप वॉच है, दैट कैन बी यूज सो दैट यू कैन मेजर द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ रिपीटेड एक्टिविटीज. ठीक है. सो स्टैंडर्ड यूजुअली ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये आप कैसे डिटरमाइन करते हो, तो बाय यूजिंग द एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग्स. एक काम सेम काम करने के लिए बार बार मैक्सिमम आप कितना टाइम ले रहे हो आप उसका एवरेज निकल के आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हो एंड विच यू कैन टेल टू योर वर्कर्स कि ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है और स्टैंडर्ड टास्क को इसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्कर है, उसको सपोज एक बॉक्स अगर उसको पूरा बॉक्स रेडी करना है तो ही रिक्वायर्स 30 मिनट्स, यानी 1 घंटे में वो कितना बॉक्स बना सकता है ऑन एन एवरेज 2 बॉक्स. तो वैसे अभी टोटल कंपनी में 8 आवर की शिफ्ट होती है आपकी. ठीक है. अब 8 आवर में से 1 आवर आई एम रिमूविंग एज अ रेस्ट टाइम, लंच है या कोई रेस्ट टाइम शॉर्ट ब्रेक ऐसा दिया हुआ है तो टोटल 1 आवर विल बी रेस्ट टाइम, यानी टोटल उसका एफिशिएंट वर्किंग आवर कितना हो जाएगा 7 आवर्स. तो 1 घंटे में अगर वो 2 बॉक्स बना सकता है तो 7 घंटे में कितना बनेगा 14 बॉक्स. तो ये 7 आवर एंड 14 बॉक्स ये आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड टास्क एंड स्टैंडर्ड time. So you will allot this standard task and standard time to each and every worker to see कि whether he is able to produce this number of boxes in the given time period or not. So that is your time study. एंड ये स्टैंडर्ड टाइम का क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है कि वंस एक बार आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो आप इजिली टारगेट सेट कर सकते हो और उसी हिसाब से वेजेस या इंसेंटिव्स भी डिटरमाइन कर सकते हो. एंड लास्ट दैट इज फैटिग स्टडी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैटिग. फैटिग मतलब सिंपल बोर होना. तो फैटिग स्टडी क्या करता है, इट कंसिडर्स द फैक्ट दैट नाउ इंडिविजुअल ही विल बी गेटिंग टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली. जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हो तो बट ऑब्वियसली फिजिकली एंड मेंटली आप थक जाते हो. आपको हर एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में यू विल रिक्वायर दी ब्रेक्स या रेस्ट आपको चाहिए. ये शॉर्ट ब्रेक्स आपको क्यों दिए जाते हैं, सो दैट
it helps you to regain your stamina so that you are able to work with the same energy so that your productivity can be increased. So fatigue study का main मकसद क्या है? Fatigue study is done to determine the amount and frequency of rest interval that is required while completing a task. अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक बार पूरे दिन में एक बार ब्रेक देना, 2 बार ब्रेक देना या 3 बार, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. एंड अमाउंट मतलब 10 मिनट का देना, 15 मिनट का देना, आधा घंटे का देना, वैसे. तो फैटिग स्टडी का काम क्या है? टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ने आते हो, ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक आटो के आटो पीरियड्स अटेंड करना पड़े तो क्या हालत हो जाएगी आपकी? बट ऑब्वियस है, कुछ समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई लॉन्ग ब्रेक एंड शॉर्ट ब्रेक होता है आपको. जैसे 15 मिनट की रिसेस है, फिर 2 पीरियड के बाद एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है. तो ये ब्रेक्स आपको क्यों देते हैं? सो दैट आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए एंड देन यू आर रेडी और यू आर प्रिपेयर टू गो फॉर योर नेक्स्ट पीरियड. सो दैट इज दी फैटिग स्टडी. सो फैटिग स्टडी वॉज दिस कॉन्सेप्ट, दिस स्टडी वॉज डेवलप सो दैट रेगुलर इंटरवल्स आप डिटरमाइन कर सको एंड इट कैन बी गिवन टू दी वर्कर्स सो दैट वर्कर्स बोर ना हो एंड दे मे वर्क विद दी फुल एनर्जी. नाउ फैटिग स्टडी सजेस्ट, ये और भी सजेस्ट करता है कि जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, अनसुटेबल वर्क है, लैक ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग वर्कर्स, बैड वर्किंग कंडीशन, दिस आर ऑल लीडिंग टू फैटिग्स अमॉन्ग दी वर्कर्स. सो अगर आपको ये फैटिग स्टडी इफेक्टिव करना है तो ये जो हिंड्रेंसेस है सबसे पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा कि बोर होने के पीछे मेन रीजन क्या है. ठीक है, सो बोर होने के लिए अगर आपको मतलब आप एक रीजन ढूंढ सकते हो, रीजन कोई पर्टिकुलर रीजन है तो उसको निकाल दो सो दैट यू विल बी एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली. सो दिस इज दी थर्ड टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक. और इसमें से सबसे ज्यादा आपने सुना होगा तो टाइम एंड मोशन स्टडी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादातर यूज होता है in a particular given organization so that the work can be done more efficiently and effectively. So that's all for today. Tomorrow we'll see the fourth technique of scientific management. Thank you.